Hello, everyone. So, in the previous class, we did an session on generative AI. Okay, I have invited you all to notice the changes which are brought by artificial intelligence in a quick time. And I believe that you got an idea how artificial intelligence, that is generative AI, now I'll say generative AI, is putting a drastic change in the system. Okay, so this makes a sense that machine learning, okay, we are doing that. Deep learning, yes, we will do ahead. But we can't miss a chance to learn generative AI also. ये छोड़ नहीं सकते. ओके, एटलीस्ट अभी से शुरुआत करेंगे तो जाके हम जब हमारा डीप लर्निंग भी हो जाएगा, जनरेटिव एआई भी हो जाएगा साथ में. ओके, एंड विल बी इन अ पोजीशन दैट वी कैन फाइट फॉर द वेरियस कॉम्पिटिशंस किसी भी सेंस में हो सकती है. ठीक है, इसके और पहले की बात करूं, इफ आई डू टॉक about my previous lecture, a random forest we have compiled. Okay, I have shown you the implementation, I have explained the implementation of random forest. Okay, and you came to know about the fact that कोड बना लेना अब वो वाली बात नहीं है. ठीक है, और जो अब हमें फोकस करना है दैट इज रिलेटेड टू द मैथ्स. what is the logic, what is the concept behind the algorithm and the technique used. करस्पॉन्डिंगली हम अपना सोल्यूशन क्रिएट करेंगे, बनाएंगे. और जो बेसिक प्रोग्रामिंग है वो हमें सीखना है, वो करते ही हैं. ठीक है, बट डोंट पुट टू मच स्ट्रेस ओवर इट, ये नहीं करना. ओके, रैंडम फॉरेस्ट में बैगिंग टेक्निक has been, and in the bagging technique we seen that the models are arranged in a parallel way. Okay, each and every model is behaving independent, and the data has been given to the model for the training is in a form of subset where neither the complete rows nor the complete columns are being given. The reason was to avoid overfitting in the model, because decision tree was something which was facing this issue of overfitting. Meanwhile, I have also explained certain terms which means your bias and the variance trade-off, ये सब भी बताया. ओके, एंड कर्स और डेमेस्टिटी दैट इज द रिजल्ट ऑफ ओवरफिटिंग, ये भी मैंने आपको बताया. एक जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है रैंडम फॉरेस्ट में, दैट इज ओ ओ बी, आउट ऑफ द बैक कॉन्सेप्ट. ओके, this has been followed by the random forest. It doesn't matter that you give a data to the random forest for the training purpose in the form of x train and x test and y train and the y test. No, it will by default, it's a process of random forest that is going to split your data automatically. Okay, you do not have to do this task. You can give the complete data in one slot itself. Give X and Y and let the model to train over it. Fine, it will do it. If you split also, that is also cool. We do that. Okay, however, this training and the validation has been done in the random forest by its own procedure. Okay, so the point here is, sir, you have arranged the models in a parallel way, and each and every model is still a decision tree model, and it is working independently. Still, the point is we may have some drawbacks related to the random forest. Okay, I need to boost up my training process, and how to boost this thing. When I was dealing with the random forest itself, I did told that there is one more technique that is called as a boosting technique, where the arrangement of models are sequential in nature. Okay, and each and every model is considered as a weak model, and the combination of this complete weak models will make a strong model. So still in random forest we are having weak models. Okay, we are having weak models, they are not paired up.
Okay, whatever be the result they are giving, it's an individual basis. Later on we are doing the voting for the classification and average for the regression. ओके, है तो वो डिसीजन ट्री ही ना। ठीक है, आपने ओवरफिटिंग को ही टारगेट करा था बस, उसी को बचाने के लिए आप सबसेट ऑफ द डेटा दे रहे थे, और कुछ नहीं करा आपने रैंडम फॉरेस्ट में। ठीक है, रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेम। बूस्टिंग में, एज यू आर सीइंग इट, boosting is a method used in machine learning to reduce the errors in predictive data analysis. Now here, by arranging the elements, or I would say the models, in a sequential way, will help in reducing the error. Now how they are going to reduce the error? What is the technique? What is the procedure applied in reducing the error? ये किसने कैसे बोल दिया? क्योंकि वहां पर reducing the error का कोई concept नहीं था. Only the concern was related to avoid the overfitting. ठीक है. So data scientists train machine learning models. Okay, they can be labeled, they can be unlabeled. Here boosting algorithms are supervised machine learning, so the data will be labeled. Okay, and a single machine learning model may make predictive errors. Okay, now what happened in case of your your प्रीवियस मॉडल्स? लीनियर रिग्रेशन सिंगल था, लॉजिस्टिक रिग्रेशन सिंगल था, ठीक है, एसवीएम सिंगल था, डिसीजन ट्री सिंगल था। आपने रैंडम फॉरेस्ट एक ऐसी अनसेंबल टेक्निक थी जहां आपने क्लब करा सबको और एक्सपेक्ट करा कि हम वोटिंग करवाएंगे, क्योंकि फ्यू ऑफ द डिसीजन ट्री मे गिव रॉन्ग रिजल्ट्स, फ्यू ऑफ द डिसीजन ट्री मे गिव राइट रिजल्ट्स, सो वट एवर बी द मेजोरिटी इज, हम उसके साथ जाना चाहेंगे, ऐसा हमारा मानना है। ठीक है, सो इफ अ कैट इज आइडेंटिफाइड, okay, trained over the images of only white cats, it may occasionally misidentify a black cat. ये भी कर सकता है ना, क्योंकि यदि आपने बायस्ड डेटा से ट्रेनिंग करा है तो हो नहीं पाएगा। ऑब्वियसली मॉडल इज गोइंग टू गिव यू द फॉल्स रिजल्ट्स, देयर इज एन एरर, देयर इज एन इशू। तो बूस्टिंग क्या करने वाला है? हाउ द बूस्टिंग इज गोइंग टू हेल्प यू? बूस्टिंग विल improve the machine learning model's accuracy, okay, by converting the weak learners into strong learning model. तो वीक लर्नर क्या होते हैं? वीक लर्नर हैव लो प्रिडिक्शन एक्यूरेसी, okay, similar to a random guessing. That means every individual model, we are saying that you are a weak model. Okay, they may subject to the overfitting also. Okay, and the results may vary according to the data set also. For example, if you train the model to identify cat as animals with pointed ears, it may fail to recognize a cat whose ears are curled. Still वो cat तो cat ही था ना। अच्छा, इसमें कुछ नया नहीं है, इट्स नथिंग न्यू। ओके, जैसे डेटा से फीड करोगे वैसे ही मॉडल तो आपको रिस्पॉन्स देने वाला है, वो आज भी यही होता है। ठीक है, द काइंड ऑफ डेटा यू आर फीडिंग, इफ यू आर फीडिंग द बायस डेटा, आई विल गिव यू द बायस रिजल्ट्स। ओके, नया क्या करने वाले हो आप? स्ट्रॉन्ग लर्नर का कॉन्सेप्ट क्या आने वाला है? आप ये कह रहे हो स्ट्रॉन्ग लर्नर आर हैविंग हाई एक्यूरेसी, high prediction accuracy. That means boosting converts a system of weak learner into strong learner. कैसे? यानी आपने कहा आइडेंटिफाई मुझे करना है कैट की इमेज को, तो इट विल कंबाइन ऑल द वीक लर्नर गेसेस for pointy ears and another learner the guess was cat shaped eyes. After analyzing the animal image for pointy ears, the system analyzes it once again for the cat shaped eyes. This proved the system's overall efficiency. तो आप इस टेक्निक में कुछ मॉडल जो है, दे आर आइडेंटिफाइंग respective features related to the cat. Some models are being identify a different feature in the training. Okay, according to these analysis, we are going to take a final decision, not only a single result. Okay, that is not the thing. Fine. So how does it works? So, to understand the working of boosting, let us describe some machine learning models that will make a decision. So, decision tree is something which you very well know. Okay, and it's based upon the criteria, and the decision tree splits on the basis of criteria to give the final results. Here, we are considering decision tree only as a weak model. That's what we are doing. Okay, fine.
In random forest also we consider decision tree as a model. In boosting also we are going to consider decision tree as a model. Fine. So we are having an ensemble technique. That means we are going to combine the several weak decision tree in a sequential manner. Okay. It assigns, now this is a very important line, it assigns weights to the output of individual trees. Then it gives incorrect classifications from the first decision tree, a higher weight and input to the next tree. Okay, now give me a chance to share the entire screen and explain you the concept, what is happening behind the boosting. Okay, what we learned so far is, sir, you are arranging the models in a sequential way. Okay, fine. So let's take it. ये मेरा मॉडल, ये भी मेरा मॉडल, and this is also my model, and so on. This is model 1, this is model 2, this is model 3. I am going to give a data as an input to the model. That's what I am going to do. और ये डिसीजन ट्री है. ओके, वी नो द वर्किंग ऑफ डिसीजन ट्री, अब इसमें हमें जाना भी नहीं. ठीक. तो जैसे डिसीजन ट्री वर्क करता है, इट विल डू द सेम. फाइन. And they said at the step number 1 we are going to assign weights to the input of individual trees, weights to the output of the individual trees. Okay, तो भाई जो भी रिजल्ट्स आए हैं, we are going to assign weights to them. If the results are misclassified, increase the weight. Okay, increase the weight. Okay, make it higher. Okay, and give this as an input to the next tree. After numerous cycles, the boosting method combines the weak rules into single powerful prediction. Okay, this is what it's gonna happen. Fine. तो क्या कर रहे हैं हम, आपके पास ये डिसीजन ट्री है. ठीक है, आपने इसको इनपुट दिया ट्रेनिंग के लिए, इसने आउटपुट दे दिया आपको. लेट अस सपोज दिस इज द आउटपुट ऑफ योर फर्स्ट डिसीजन ट्री. ओके, व्हाट इफ यदि मिसक्लासिफाइड हुआ, if you are having a misclassification, whatever be the weight you have assigned to it, उसमें आपको इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, एडिशन इन द वेट. ओके, तो मेरा ऐसा मानना है कि पूरी बातें नहीं बोली उसने अभी. इट हैवंट शेयर्ड द कंप्लीट थॉट्स ओवर द मॉडल. आप जब डेटा दे रहे हो, व्हेन यू आर गोइंग टू सप्लाई योर डेटा, तो मुझे लग रहा है आप इसमें भी वेट्स असाइन करके दोगे. ओके, कुछ ऐसा वेट असाइन करके दोगे आप इनपुट्स में भी. This is your data set. Okay, and obviously it's a supervised machine learning algorithm, so you are available with the target. ये आपके पास है. Okay, तो यहाँ वेट्स असाइन होंगे, जो टारगेट्स हैं, जो आउटपुट्स हैं, उनको हमने वेट असाइन करके दिए. ऑल राइट, दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू. फाइन. तो मेरे पास जो डेटा है उसमें टारगेट गिवन है. आई एम असाइनिंग वेट्स टू दम. इनिशियली ही मैं वेट असाइन करके अपने मॉडल को ट्रेनिंग के लिए दे दूंगा कि ये लो. अब जिन पॉइंट्स पर मिसक्लासिफिकेशन हो रहा होगा, उसने कहा है जस्ट चेक द आउटपुट, टेक द आउटपुट. ओके, अब मेरा डिसीजन ट्री तो, क्योंकि क्लासिफिकेशन की अभी बात कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली 0 1 0 1 जो भी होगा वो यहाँ पर होगा. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बाइनरी ले रहे हो तो 0 1, टारगेट इज फॉर एग्जाम्पल बाइनरी 0 1, तो ये मेरा टारगेट है. तो उन्होंने कहा है कि जो आउटपुट है, ठीक है, हमने जीरो को भी वेट असाइन करा, मान के चलिए वेट को भी असाइन करा, कुछ ऐसा वेट हमने जो है वो असाइन करा है. ओके, एंड देन व्हाट हैपन कि जब आउटपुट आया मेरे पास, यदि वो मिसक्लासिफाइड था तो मैंने वेट इंक्रीज करा, और यदि मिसक्लासिफाइड नहीं है तो मे बी आई एम गोइंग टू डिक्रीज द वेट फॉर दैट. मैं वेट कम करूंगा, एंड ये जो आउटपुट है, दिस विल बी गिवन एज अ फीडबैक टू द नेक्स्ट मॉडल. मैं इस मॉडल को क्या कर दूंगा, एज अ फीडबैक दे दूंगा. यही यहाँ पर कॉन्सेप्ट में कहा गया है, गिव दिस एज अ फीडबैक टू द नेक्स्ट. ओके, टू द नेक्स्ट ट्री, उसको दे दीजिए आप, और ये प्रोसेस चलती जाएगी. दिस इज एन इटरेटिव इन नेचर. ये इटरेटिव प्रोसेस है, ये प्रोसेस चलते चले जाएगा ट्रेनिंग का. ओके, बस यही कहा गया है. सो हाउ द ट्रेनिंग इज बीन डन इन द बूस्टिंग. Okay, so the boosting algorithm assigns equal weight to each data sample. अब यहाँ पर वो खुल के बात कर रहा है. Okay, now it has been talking completely based upon it.
ओके, सो द बूस्टिंग एल्गोरिदम असाइंस इक्वल वेट टू ईच डेटा सैंपल। ठीक है, मैंने अभी जस्ट कुछ देर पहले यही कहा था आपसे। लेट अस सपोज ये मेरा डेटा सैंपल है। ठीक है, तो क्या करता है ये, फॉर ईच एंड एवरी सैंपल इट्स गोइंग टू असाइन इक्वल वेट। ओके, इट फीड्स द डेटा इनटू द फर्स्ट मशीन लर्निंग मॉडल, यानी कि आपका पहला डिसेंट्री के अंदर ये वाला डेटा दिया। तो भाई ये मेरा डेटा था, क्या वेट असाइन करेगा? इफ यू हैव हैविंग अ क्वेश्चन इन योर माइंड, द क्वेश्चन इज व्हाट इज द वेट, हाउ इट इज असाइंड। Okay, that is the internal logic of the algorithm. Okay, that is being internal logic of the algorithm. ये नहीं बोला गया है, आपको प्रोसेस बताइए। प्रोसेस यानी आपको स्टेप्स बताया गया है कि वो मॉडल क्या काम करता है, बट हाउ इट इज असाइनिंग अ वेट, what weight it has been assigned, it's not been given. Okay, you have to go with the concept. ठीक, तो यहाँ पर उसने कहा कि ऐसा ऐसा है, वेट असाइन करो डेटा को और उसको पहली डिसेंट्री के अंदर एज एन इनपुट दे दो। ठीक है, स्टेप नंबर 2 क्या है? द बूस्टिंग एल्गोरिदम असेस द मॉडल प्रिडिक्शन। ठीक है, अब वो डिसेंट्री रिजल्ट तो देगा। ठीक है, ट्रेनिंग होगी एंड इट विल गिव यू अ रिजल्ट, और आउटपुट तो आपको मिलने वाला है। ठीक है, यदि आउटपुट गलत आता है, ओके, तो वेट इंक्रीज करना, इंक्रीज द वेट ऑफ द सैंपल्स विद अ मोर सिग्निफिकेंट एरर। ओके, मुझे वेट इंक्रीज करना पड़ेगा विद द मोस्ट सिग्निफिकेंट एरर। मुझे देखना पड़ेगा कि कौन से ऐसे डेटा पॉइंट्स हैं जहां पर मिस क्लासिफिकेशन हुआ। यानी कि आप यदि बात कर रहे हैं, दिस इज माई एक्स थिंग एंड दिस इज माई वाई थिंग। यदि यहां पर एक्चुअल में जीरो था, मेरे पास मेरा मॉडल 1 दे रहा है उसे, तो ये मिस क्लासिफिकेशन हुआ। ओके, दिस इज अ मिस क्लासिफिकेशन डन। इसका वेट मैं बढ़ाऊंगा। ठीक है, आई एम गोइंग टू इंक्रीज द वेट ऑफ इट, कि भाई इस पॉइंट पर गलती हुई है आपसे, ये वो कहना चाह रहा है। ठीक, अभी अभी मैं फिर से आपको इस बात के लिए सचेत कर दूं, ब्लैक बॉक्स मॉडल याद करिएगा। ठीक है, ब्लैक बॉक्स चीजें हैं। ओके, हम कोशिश कर रहे हैं जितना समझ सकें उतना। ठीक, प्रोसेस क्या हो रही है इंटरनली, वी आर ट्राइंग टू सिंप्लीफाई अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट मेंशन। तो इसने कहा यदि मिसक्लासिफिकेशन हुआ, यानी कि एक्चुअल वाज जीरो, द आउटकम वाज 1, सो दिस इज अ मिसक्लासिफिकेशन, आई एम गोइंग टू इंक्रीज द वेट फॉर इट अकॉर्डिंग टू द एरर, वट एवर बीन जो आया है वहां पे। ठीक, इट ऑल्सो असाइंस अ वेट बेस्ड ऑन मॉडल परफॉर्मेंस, यानी 2 वेट देगा ये। एक तो मॉडल की परफॉर्मेंस, हमने पहले भी बात करी थी, ये छोटा सा डिस्क्रिप्शन रैंडम फॉरेस्ट में भी आया था कि मॉडल की परफॉर्मेंस को भी इवेल्युएट किया जाएगा। द मॉडल विच इज गिविंग द गुड परफॉर्मेंस, उसको मैं ज़्यादा प्रायोरिटी दूंगा, एंड द मॉडल विच इज गिविंग द लो परफॉर्मेंस, उसको मैं लेस प्रायोरिटी दूंगा। ओके, एंड एट द एंड I will consider those models to give me the finalization or the final results which are having the highest priority. इनको फिर मैं इग्नोर करूंगा। ओके, दैट इज व्हाट हैपेंस। रैंडम फॉरेस्ट में ऐसा नहीं था। इन केस ऑफ रैंडम फॉरेस्ट, एवरी मॉडल इज इंडिविजुअल एंड दे हैव गिवन अ चांस। यहाँ पर ऐसा नहीं है, द मॉडल विच इज गिविंग द मिस क्लासिफिकेशंस, भाई उसका वेट बढ़ेगा, उसकी प्रायोरिटी घटेगी। ठीक है, तो जिन पॉइंट्स पर गलती हुई उसका भी वेट बढ़ाओ, और उस मॉडल के ओवरऑल वेट भी बढ़ाओ यदि वो गलतियां ज्यादा कर रहा है तो। ये होता है बूस्टिंग के अंदर। ओके, जैसे कि हम अपने रियल लाइफ में भी बात करें, वी आर गिविंग टास्क टू द एम्प्लॉइज। ओके, कंपनी यही करता है ना, गिव अ टास्क टू द एम्प्लॉइज। अब एम्प्लॉयज को जो टास्क दिया, ठीक है, वट एवर बी द टास्क विच आर लिस्टेड, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने इसके अंदर गलती करी, ये जो है वो अपने सही करे। ठीक है, ये भी सही करा, यहाँ पर उन्होंने गलती करी। ठीक है, और भी टास्क थे, तो यहाँ पर भी उन्होंने गलतियां करी, तो जहां जहां गलती करी मैं उनके वेट बढ़ाऊंगा, और जितनी नंबर ऑफ गलतियां करी है उसके अकॉर्डिंग उस एम्प्लॉय का भी मैं जो है आई एम गोइंग टू से कि ये एरर्स बहुत ज़्यादा करता है, गलतियां ज़्यादा करता है, तो ओवरऑल भी बढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, आई विल मार्क द मिस्टेक्स डन बाय दिस पर्सन where you are doing the mistakes, and also I will overall rate you that what is your performance। ठीक है, यही काम जो आप रियलिटी में करते हैं, वही काम आप एमएल मॉडल में बूस्टिंग के अंदर करवा रहे हैं। ठीक है, अब क्या होगा,
ठीक है, ये तो अब ये एक जनरल सा बात हुआ। यहाँ पर तो इंडिविजुअल डिसीजन ट्री होते हैं, इंडिविजुअल डिसीजन ट्री यहाँ भी होते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं विद द हेल्प ऑफ अ फीडबैक। और इसका लॉजिक ही बूस्टिंग को बता रहा है, यानी कि द मिस्टेक हमारा एक्सपेक्टेशन है कि एक्सपेक्टेशन, ठीक है। अब क्या हुआ कि मैंने ये टास्क एक एम्प्लॉय को दिया था, उसने इतनी गलतियां कर दी, तो मैंने क्या करा, इतनी गलतियां करी, एंड तो उनका वेट मैंने बढ़ा दिया। जिन जिन टास्क पर उसने गलतियां करी थी, जिन जिन पॉइंट्स पर गलतियां करी थी, आई मार्क देम। तो मैंने उसके ओवरऑल एम्प्लॉय की भी रेटिंग कर दी और उसकी गलतियां भी मार्क कर दी। नाउ आई विल हैंड ओवर दिस टास्क टू द नेक्स्ट एम्प्लॉय, एम्प्लॉय नंबर 2 को दे दूंगा मैं बोलूंगा कि देख भाई, क्या हुआ कि ये टास्क मैंने उसको दिया था और उसने इन इन पॉइंट पे गलतियां करी हैं। ओके, द मिस्टेक डन बाय दैट पर्सन ओवर दीज पॉइंट्स, ठीक है। अब आप ट्रेन हो और इन पे फोकस करना, ड्यूरिंग ट्रेनिंग यू स्पेशली फोकस ऑन दीज पॉइंट्स की मिस क्लासिफिकेशन नहीं होना चाहिए। अब भाई इसने भी काम किया, दिस पर्सन ऑल्सो वर्कड एज पर अवर एक्सपेक्टेशन, कि जो पॉइंट्स उसने सही पकड़े थे वो इसने भी सही करे। लेट अस सपोज वट एवर बी द पॉइंट्स that person did correctly previous one, this also did the same. The point which he did mistake, okay, this point he did a mistake, इसने उसको भी सही कर दिया, मान लीजिए इसने उसको भी सही कर दिया। हाँ, बट ये वाला था वो मिस्टेक में था, ये अभी भी मिस्टेक नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है। मैं, क्योंकि इसकी मिस्टेक है, मैं वेट फिर बढ़ाऊंगा, आई एम गोइंग टू इंक्रीज द वेट। बाकियों का वेट, अब क्वेश्चन ये होगा कि सर बाकियों के वेट का क्या होगा, either they will remain the same or either they will be decreasing। वो आगे देखते हैं कॉन्सेप्ट क्या कहता है। ओके, दोज पॉइंट्स जिनको हमने इनिशियल वेट दिया था और वो मिस्टेक नहीं हो रहे हैं, तो क्या हमें उनको डिक्रीज करते रहना चाहिए उनका वेट? फॉर एवरी iteration do you have to increase their weights, or while supplying to the models do we have to decrease their weights, or will they remain the same? What is the procedure? ओके, ये क्वेश्चन वाली बात है। ओके, तो देखते हैं आगे व्हाट विल हैपन। अभी तो हम कह रहे हैं कि लेट अस सपोज कि वो डब्ल्यू ही रहे, उनमें कोई इंक्रीज या उनमें कोई चेंज नहीं आया, ठीक है। तो अब ये उसने जो परफॉर्म करा है, दिस आई विल गिव द परफॉर्मेंस टू द पर्सन नंबर 3, उससे भी ये बोलूंगा, दैट मीन्स दिस इज द डिसीजन नंबर 3, एंड आई एम सेइंग कि ये मिस्टेक हो रही है और इसको आप जो है वो कोशिश करें कि ये गलती नहीं होना चाहिए। अब हो सकता है इसने इस गलती को तो सुधार दिया, किसी और पॉइंट पे गलती कर दी, ऐसा भी तो हो सकता है, जिससे किसी और पॉइंट पे गलती कर दी। और या हो सकता है कि इसने इस पॉइंट को सुधार दिया, बाकी और दूसरे पॉइंटों पे ज्यादा गलती कर दी। ओके, सो हमारी एक्सपेक्टेशन क्या बनती है, व्हाट वी एक्सपेक्ट, कि द मिस्टेक्स विच आर डन बाय द फर्स्ट मॉडल विल नॉट बी रिपीटेड बाय द नेक्स्ट मॉडल्स। ओके, ये हम एक्सपेक्ट करते हैं, नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स मिस क्लासिफिकेशन नहीं होना चाहिए उनसे आगे, क्यों? क्योंकि आप एक फीडबैक दे रहे हो उनको कि वो ऐसी गलती ना दोहराएं, ठीक है। दैट मीन्स दे आर हैविंग अ नॉलेज कि कहाँ कहाँ किन पॉइंट पर गलती थी। कैसे नॉलेज आ गया? वेट बढ़ने के कारण आ गया, बिकॉज द वेट हैज बिन इंक्रीज्ड। ओके, दैट्स द रीजन कि उनको नॉलेज आ गया कि यहाँ पर गलती हुई थी, अब इस पर स्पेशल अटेंशन देना है, इसको फोकस करना है। तो यही उन्होंने यहाँ पर पॉइंट्स के अंदर समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको। द एल्गोरिथम पासेस द वेटेड डेटा टू द नेक्स्ट डिसीजन ट्री, ठीक है। तो जो भी गलतियां हुई, वेट बढ़ाया, सब कुछ हुआ, अगले वाले डिसीजन ट्री को दे दिया। The algorithm steps 2 and 3 they are repeated until the instances of training errors are below a certain threshold। ठीक है, तो ऐसा हम मान रहे हैं कि कोई एक थ्रेशोल्ड वैल्यू भी होगी। ओके, एंड द इंस्टांसेस ऑफ ट्रेनिंग एरर्स आर बिलो अ सर्टेन थ्रेशोल्ड। दैट मीन्स आपने वेट को डिक्रीज कर रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। यू आर डिक्रीजिंग द वेट। यदि एरर नहीं है तो यू आर डिक्रीजिंग द वेट, यदि एरर है तो यू आर इंक्रीजिंग द वेट। ओके, तो ये वेट्स जब तक किसी एक थ्रेशोल्ड वैल्यू तक नहीं आ जाती, ये भी आपने दी नहीं, अगेन इट्स एन इंटरनल प्रोसेस विच इज बिन फॉलोड बाय द बूस्टिंग एल्गोरिथम। तो उस तक नहीं आ जाती, तब तक ये आप ट्रेनिंग चलाते रहेंगे अपनी। ओके, मतलब एल्गोरिथम विल वर्क अपॉन, ठीक। ये होता है बूस्टिंग का फंडा। अभी और भी इसी कॉन्सेप्ट को कई बार कई एग्जाम्पल्स से आई नीड टू रिपीट, ठीक है, बस सर्टेन एग्जाम्पल्स आई नीड टू रिपीट। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस थिंग अगेन, बिकॉज यही बेसिक्स है, ये हमें सीखना चाहिए और इन्हीं पर ही हम फोकस करेंगे।
ठीक है, आते हैं दूसरे कंटेंट पर आते हैं। बूस्टिंग, ठीक है, पढ़ा आपने, समझ भी गए। द प्रिंसिपल बिहाइंड द बूस्टिंग इज टू बिल्ड अ मॉडल, ठीक है, ऑन द ट्रेनिंग डेटा सेट where the second model will rectify the errors present in the first model। यही कर रहे थे, है ना, यही तो बोला मैंने। और डायग्राम से देखो आप कैसे रेक्टिफाई कर रहा है। लेट अस सपोज ये डेटा है, ठीक है, दिस इज द डेटा, और आप ये देखो यहाँ पर वेट असाइन करके दिया जा रहा है डेटा को। दैट मीन्स एवरी सैंपल, एवरी रो हैज बीन असाइंड अ वेट, ठीक है, एवरी रो हैज बीन असाइंड अ वेट। वो सेम वेट हो सकते हैं, वो अलग भी हो सकते हैं। यहाँ आपने देखा कि अलग अलग वेट है। सो यू आर अवेलेबल विद द डेटा सर, ओके, दिस इज योर डेटा, ओके, यू आर अवेलेबल विद, ऑल राइट। एंड जैसे मैंने पहले भी कहा था, ओके, दैट यू आर गोइंग टू गिव द वेट्स, ठीक है, टू ईच एंड एवरी आउटपुट्स। सबको दे रहे हो आप, वेट दे रहे हो, सेम दे दो, कोई बात नहीं, अलग देना अलग दे दो। मतलब हम तो खैर दे ही नहीं रहे, वो तो इंटरनल प्रोसेस है, ठीक है, सबके अपने कॉन्सेप्ट से यहाँ पर उन्होंने कहे हैं, ठीक है, उसको हम फॉलो अप कर रहे हैं, दे दिए। अब ये अब ये बता रहा है कि आपने अगेन सैंपलिंग करी यहां पर, ये पार्ट आपने उस कंटेंट में नहीं पढ़ा। देखो 1367 ये वाली रो गई है मॉडल नंबर 1 के अंदर ट्रेन होने के लिए। ओके, दिस इज अ सैंपल बीन गिवन टू द मॉडल फॉर द ट्रेनिंग। ये गया, उसने अपना कुछ आउटपुट दिया, ठीक है। मॉडल नंबर 2 के अंदर जो सैंपल गया है वो 4673 हो सकता है। द सेम नंबर ऑफ रोज मे बी गिवन टू द मॉडल नंबर 2, मे बी डिफरेंट रोज आर ऑल्सो इंक्लूडेड, है ना, ये कर सकते हैं। और ये हुआ M2 के अंदर दूसरी रो गई है। M3 के अंदर 2375 अगेन डिफरेंट एंड कंबाइंड रोज। तो ऐसा वो चलता रहेगा, ओके, ऐसा ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो इस टाइप के कॉन्सेप्ट को हमने बैगिंग के अंदर पढ़ा है, वेयर वी आर गिविंग रो रिप्लेसमेंट सैंपल ऑफ द डेटा, ओके, टू ईच एंड एवरी डिसेंट्री। यहां पर भी कुछ ऐसे ही ले रहा है, ठीक। तो सेम भी जा सकता है, अलग अलग रो भी आएंगी, ओके। एंड दिस इज हाउ द मॉडल विल बी ट्रेन, ओके। डिसेंट्री में अच्छा ये बात भी है, वो क्यों सैंपल ले रहा है, वो ही बोलेगा कि भाई आप जो है यू कांट गिव द एंटायर डेटा सेट इन अ वन वे, ठीक है, एक ही बार में पूरा एंटायर डेटा सेट नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि वो फिर ओवरफिटिंग करेगा, तो आपको सैंपल ही देना पड़ेगा। तो कहीं भी डिसेंट्री आएगा अनसेंबलिंग एल्गोरिथम्स के अंदर, इन अनसेंबलिंग मॉडल्स, यू हैव टू गिव द डेटा इन अ फॉर्म ऑफ अ सैंपल्स। तो वो अपनी सही अप्रोच फॉलो कर रहा है, गलत नहीं है। इट इज फॉलोइंग द करेक्ट अप्रोच बाय गिविंग द सैंपल्स ऑफ द डेटा, टेकिंग सम रोज, ठीक। और ये चलता जाएगा, ये देखिए। तो ये डायग्राम देखकर ही मैं अपनी प्रोसेस को बता सकता हूं कि क्या हो रहा होगा, ठीक है। तो वेट्स हैं, वेट बढ़ेंगे घटेंगे, ये सारे काम होगा। एक थ्रेशोल्ड है, वहां तक यदि मेरा सब कुछ हो गया व्यवस्थित, ठीक है, उतने लेवल तक द वेट्स राइज, मतलब राइज नहीं, दैट मीन्स द वेट केम अप टू दिस पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड वैल्यू, देन दैट्स इट, माय ट्रेनिंग इज ओवर। बाहर आ जाऊंगा, एग्जिट कर दूंगा। इन सबको मिलाकर मैं स्ट्रॉन्ग मॉडल बना रहा हूँ, दैट मीन दीज आर ऑल आर द वीक मॉडल्स, ठीक है। तो अब ये भी बोल रहा है, सपोज यू आर हैविंग एन डेटा पॉइंट्स एंड टू आउटपुट क्लासेस 0 and 1, ओके, दैट्स व्हाट आई एम हैविंग, फाइन। तो भाई क्या होगा, I want to create a model to detect the class of test data. Okay. We will randomly select the observations from the training data and feed them to the model 1. We also assume initially that all the observations have equal weights, that means equal probability of getting selected. ठीक है, बात क्लियर हो गई। दैट मीन्स आप जो डेटा दे रहे हो ना, वो बैलेंस्ड डेटा दे रहे हो। पॉइंट नंबर 1, इसने ये लाइन नहीं कही लेकिन समझ के चलेगा। यू आर गिविंग अ बैलेंस्ड डेटा फॉर द ट्रेनिंग, फॉर ट्रेनिंग, ठीक है। तो नंबर ऑफ जीरोस एंड नंबर ऑफ वंस वो सेम होंगे। इन्होंने कहा कि आप वेट भी सबको बराबरी का असाइन करके दे रहे हो, यू आर गिविंग द सेम असाइनमेंट ऑफ द वेट्स टू देम, ये भी करके दे रहे हो। फिर क्या हुआ नेक्स्ट, रिमेंबर इन अनसेंबलिंग टेक्निक्स वीक लर्नर्स कंबाइन टू मेक अ स्ट्रॉन्ग मॉडल। ठीक है भैया, बता दिया, हमको पता है। M1 जो है वो वीक लर्नर है, मतलब वीक
मतलब डिसीजन ट्री है, ठीक है। इट विल श्योरली मिस क्लासीफाई, मतलब हमें तो विश्वास है कि गलती करेगा, ठीक है। नाउ बिफोर फीडिंग द ऑब्जर्वेशन टू M2, मतलब इसने अपना काम करा, इसने रिजल्ट दे दिए, ठीक है। वो M2 के अंदर जो डेटा देगा, बिफोर फीडिंग द डेटा ऑब्जर्वेशन इनटू द M2, विल चेक आउट द मिसक्लासिफाइड पॉइंट्स, किन किन पॉइंट्स पर गलतियां हुई है, ठीक है। सो यू कैन थिंक ऑफ इट एज अ बैग इनिशियली कंटेन्स 10 डिफरेंट कलर balls, बट सम टाइम some kid takes out his favorite color ball and put four red balls instead inside the bag. मतलब भाई 10 अलग अलग कलर की बॉल थी, द किड ही वांट टू प्ले, तो उसने 4 बॉल्स निकाल लिया, एंड उसने उसकी जगह रिप्लेसमेंट में 4 रेड बॉल डाल दिया। तो रेड बॉल्स जो है वो ज्यादा हो गई, हमारे पास तो 10 डिफरेंट कलर की बॉल थी, अब वो रेड बॉल ज्यादा हो गई, यानी ऑब्वियसली मिस क्लासिफिकेशन हो गई, ठीक है। नाउ ऑफ कोर्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड अ रेड बॉल इज हायर, क्योंकि उसने 4 बॉल कर दी, द प्रोबेबिलिटी इज हायर फॉर दैट, ओके, ठीक है। ऐसा हो गया, फाइन। सो दिस फिनोमिना हैपेंस इन द बूस्टिंग टेक्निक्स, ये बूस्टिंग टेक्निक के अंदर यही होता है, ठीक। व्हेन एन ऑब्जर्वेशन इज रॉन्गली क्लासिफाइड इट्स वेट्स इज अपडेटेड, उसके वेट को अपडेट करो, फॉर दोस विच आर करेक्टली क्लासिफाइड देयर वेट इज डिक्रीज। चलिए अब यहां से ये पॉइंट आपके सामने आ गया, ठीक है। जो मैं पहले समझा रहा था वो बात अब यहाँ पर क्लियर हो गई, जो गलतियां हैं उनको बढ़ा दो, जो सही क्लासिफिकेशन हुए उनके वेट को घटा दो। So the probability of selecting a wrongly classified observation gets increased. Hence, in the next model, only those observations get selected which are misclassified in the model one. जिन जिन पर गलतियां हुई हैं, ठीक है, उस पर ज्यादा अटेंशन दिया जाएगा, मैं ऐसा कह रहा हूं यहाँ पे, ओके। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ रॉन्गली क्लासिफाइड ऑब्जर्वेशन गेट्स इंक्रीज्ड, ठीक है। उस जो गलती हुई है भाई, आपने उसकी रेटिंग बढ़ाई, ठीक। Hence, in the next model, only those observations get selected where which were misclassified in the model one. अभी कह रहा है उन्हीं ऑब्जर्वेशंस को लो जिस पर मेरे मॉडल ने गलती करी है। भाई मैंने तो वेट बढ़ा दिया, मैंने तो वेट बढ़ा के दिया था, बाकी ये इस लाइन से मैं इतना सहमत नहीं हूं जो ये कह रहा है, ठीक है। द पॉइंट इज, ठीक, आपने वेट बढ़ा दिया, अब उसको एज इट इज सबमिट कर दो आगे, ओके। अपने आप क्या हो जाएगा, वो मेरा मॉडल समझ जाएगा कि इनका वेट्स बढ़ा है ना, इन पे गलतियां थी। रेस्ट ऑफ द डेटा पॉइंट्स की ट्रेनिंग जो है वो भी आपके साथ चलती रहेगी, क्योंकि इफ यू सी हियर एज पर द डायग्राम 1 3 6 एंड 7 रैंडम सैम्पलिंग हुई है, ये डेटा उठाया, तो जो मिस्टेक्स हुई थी जिन पर, ठीक है, उनका वेट तो बढ़ गया। अगली बार फिर रैंडम सैम्पलिंग करोगे आप, ठीक है, वो फीडबैक के साथ दोगे और बोलोगे कि यदि ये वाले पॉइंट आ जाए सिलेक्शन में तो इनका वेट बढ़ा हुआ, इन पे गलती हुई है, ठीक है, इनको सुधार लेना, ठीक है। ऐसा करके वो बोलेगा, तो फॉर एग्जाम्पल 7 पर गलती हुई थी तो 7 वो ध्यान रखेगा इस पर गलती हुई। अगेन यू कैन सी ये वाले पॉइंट सिलेक्ट हुए, 2 3 7 एंड 5, ओके। अब या तो उसको ऐसा समझाने की बात कर रहा है वो कि 1 3 6 7 ही गलत पॉइंट्स थे, बाकी सब सही थे, तो मैंने 1 3 6 7 M1 वाले हैं, तो भाई ये वाले जो पॉइंट थे उसको यह यहाँ पर भी देते, ठीक है, यहाँ पर भी देते, फिर यहाँ पर भी देते, नहीं तो ऐसे नहीं, पॉइंट्स तो एक जैसे नहीं आ रहे हैं यहाँ पर, दे आर नॉट सेम, दे आर डिफरेंट, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स आर सिलेक्टेड एवरी टाइम। बस हमारा तो काम यह है कि जो गलती हुई है उसका जो है आप वेट बढ़ा दीजिए, एंड उसका फीडबैक आप नेक्स्ट मॉडल को दे दीजिए, ठीक है। सो इफ दोज पॉइंट्स आर सिलेक्टेड इन अ सैम्पलिंग प्रोसेस, ऑटोमेटिकली द मॉडल विल अंडरस्टैंड कि मुझे इस पर स्पेशल अटेंशन देना है एंड विल ट्राई टू रिड्यूस इट फॉर द नेक्स्ट टाइम, इस पर मैं गलती नहीं करूंगा, वो समझ जाएगा। इसी तरीके की प्रोसेस बढ़ती चली जाएगी, देखिए ये काम होता चला जाएगा, फाइन, दैट इज समथिंग हैपनिंग। सो ये भी कह रहा है सिमिलरली यदि मॉडल M2 गलती करता है तो जिन पॉइंटों पर करता है उसका वेट बढ़ा दो और M3 को दे दो। दिस प्रोसीजर इज कंटिन्यूड अंटिल एंड अनलेस द एरर्स आर मिनिमाइज। वो बोल रहा था ना कि थ्रेशोल्ड वैल्यू तक ना आ जाए, जब तक ये चलता रहेगा, एंड द डेटा सेट प्रिडिक्शन इज बीन डन करेक्टली, जब तक नहीं करता तब तक चलाते जाओ। Now, when the new data point comes in a text data, it passes through all the models, weak learners, and the class which get the highest vote is the output of our test data.
ठीक है भाई। तो क्या होगा कि यदि मुझे टेस्टिंग करनी है, ठीक है, आई वांट टू यूज द टेस्ट डेटा, एक बार मेरा मॉडल ट्रेन हो गया तो सारे वीक लर्नर से गुजरेगा वो। ओके, तो अभी एक एग्जांपल लिया था ना कैट वाला, दैट फ्यू ऑफ द मॉडल्स अंडरस्टैंड द कैट ईयर्स एंड सम ऑफ द मॉडल अंडरस्टैंड द कैट सम और सम अदर फीचर। तो जो उनका रिएक्शन होगा वो मिक्सअप रिएक्शन होगा, ठीक है, मिक्स रिएक्शन होगा, और वो जो है अपनी गलती ये नहीं करेंगे, यानी कि जो मिस्टेक होती है फॉर एग्जाम्पल बाइस्ड डेटा वाली, वो शायद वो नहीं दोहराएंगे, बिकॉज कैट इट कैन हैव सम डिफरेंट काइंड ऑफ ईयर्स, अनदर कैट कैन हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ ईयर। ओके, ऐसा हो सकता है, ठीक। तो वो ऐसी गलती नहीं करेंगे मेरा मॉडल, सारे टेस्ट जो है वो टेस्टिंग परफॉर्म होगी, सारे वीक मॉडल से गुजरेगा वो, ठीक है। और जैसी जो मॉडल्स की ट्रेनिंग हुई थी उस हिसाब से सारे फीचर्स को एनालाइज करेगा, टू गिव यू द रिजल्ट, वो कह रहा हाईएस्ट वोट इज द आउटपुट फॉर अवर टेस्ट डेटा, ये काम होगा, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर हमें और क्लियर करने को मिला, ठीक है, क्लियर समझने के लिए मिला। ओके, नाउ इफ आई एम हैविंग समथिंग मोर रिलेटेड टू इट, ओके, लेट्स सी, ओके हियर इट सर इज, यस यस प्लीज से। सर हम ये बैगिंग और बूस्टिंग जो करते हैं वो सिर्फ हम्म, उसमें ट्रीज ही इन्वॉल्व होते हैं हाँ ना, ट्रीज ऐसे इन्वॉल्व होते हैं, यस, अलग फिक्स ट्री। एल्गोरिदम से कंबाइन नहीं होते ना कि तीन एल्गोरिदम का बेस्ट वाला ले लिया। देखिए, आपका जो क्वेश्चन है वो वैलिड है, ओके, कि सर कैन वी क्लब डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स ऑल्सो, क्या ऐसा भी कर सकते हैं? कैन वी टेक अ लीनियर रिग्रेशन, कैन वी टेक अ लॉजिस्टिक रिग्रेशन, फॉर एग्जाम्पल से बोल रहा हूँ, या मतलब कोई ऐसे मॉडल ले लिए, यदि मुझे रिग्रेशन करना है तो लीनियर 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 मैं इनको क्लब कर दूँ, ठीक है, कैन आई डू दिस थिंग, मना नहीं करा, ले सकते हो, ओके, आप ले सकते हो, ठीक है। लेकिन भाई इनके अजम्पशंस भी तगड़े हैं फिर तो, डिसेंट्री में आपसे कोई अजम्पशन नहीं बोला उसने, और उसका सोल्यूशन ना, सॉल्विंग उसके पीछे जो मैथ्स है दैट इज इजी, ओके। एंड लीनियर जो है वो खास करके आप देखते हैं वो लीनियर रिलेशनशिप होना चाहिए, तो वही मैंने कहा ना, इसके अजम्पशंस हैं, डेटा जरूरी नहीं कि ये वाले अजम्पशंस को फॉलो करे हमेशा, डिसेंट्री फ्री है इन सब सारी बातों से, डिसेंट्री को कोई लेना देना नहीं है, दैट यू आर हैविंग अ लीनियर रिलेशनशिप विद द टारगेट, उसको कोई लेना देना नहीं, उसको कोई स्केलिंग नहीं करवाना आपसे कि स्केल करके डेटा दो, जो कि एसवीएम में करवाना, कोई हार्ड एंड फास्ट मैथ्स इज नॉट अप्लाइड इन केस ऑफ द डिसेंट्री, जैसे एसवीएम में होती है, वो भी नहीं लगा था, ठीक है। वो सिर्फ एक क्राइटेरिया फॉलो करता है फॉर द स्प्लिटिंग, ये होना चाहिए, ठीक है। तो ये मेरा सिंपलेस्ट है, अंडरस्टैंडेबल भी हो गया है। वैसे तो ब्लैक बॉक्स होते हैं सारे, लेकिन डिसेंट्री के बारे में उन्होंने बोला था कि इसका क्राइटेरिया समझ के प्लॉट प्लॉट बना के ये हमें समझ में आ रहा है कि इसकी वर्किंग क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो ये भी हो गया, अंडरस्टैंडेबल हो गया, ऑल राइट। सिर्फ एक इशू था डिसेंट्री में, ओवरफिटिंग वाला, तो उसको अनसेंबल टेक्निक के अंदर उन्होंने इस तरीके से सॉल्व करा कि पूरा डेटा मत दो, डोंट गिव द कंप्लीट डेटा, उसमें सबसेट्स बना दो, गिव सच काइंड ऑफ डेटा, सैंपल डेटा दे दो, तो शायद आप ओवरफिटिंग से भी बच जाओ, और बच रहे थे, ठीक है, ये कहा। बल्कि मैं ये नहीं कह रहा कि आप नहीं बना सकते, यू कैन क्लब डिफरेंट अदर मॉडल्स ऑल्सो, ओके, बट दैट विल बी एक्सपेक्टेशन जो है हमारी कि रिजल्ट्स प्रॉपर आ जाएगा, मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो इजी हो जाएगा, तो ये सब नहीं होने वाला मुझे, ओके, दैट्स व्हाई वी आर कंसिडरिंग द डिसेंट्री टू सॉल्व द प्रॉब्लम, ओके। अब आप कोई सा भी कंटेंट उठा लीजिए, कहीं से भी कुछ भी यू कैन पिकअप, द रिजल्ट विल बी द सेम, द कॉन्सेप्ट्स बिहाइंड इट विल बी द सेम। मेरे पास एक और कंटेंट, मैंने कई कंटेंट के एनालिसिस करा है इन सब चीज़ों के लिए, इन एल्गोरिदम्स के लिए, और सब एक ही बातें निकल के आ रही है, जितना कहा गया, वेट इनिशियलाइज करिए डेटा को, ट्रेन करिए हर एक डिसीजन ट्री पर, ठीक है, एरर कैलकुलेट करिए, ठीक है, अपडेट करिए वेट को, मिस क्लासिफाइड का वेट बढ़ा दीजिए, सबको यही कहेगा, बूस्टिंग में हर कोई यही कहेगा, और बस ये हो गया, ये वाली स्टेप को रिपीट करिए, दैट मीन्स फॉर द नेक्स्ट डिसेंट्री, ठीक है, जस्ट रिपीट दीज स्टेप्स, फाइन, and combine the weak learner. That means the final model is made up of all the weak learners that were trained in the preceding steps.
The accuracy of each weak learner is weighted, and the final prediction is based upon the weighted total of the weak learners. Weighted एवरेज निकालेंगे अपन, जिन्होंने कम गलतियां करी है उनको ज्यादा प्रायोरिटी देंगे. वेटेड एवरेज क्या होता है? WI XI, दैट विल द वेटेड. ठीक है, ये होता है ना वेटेड, WI XI ऐसा करके होता है. ठीक है, तो ये ओवरऑल वेट होगा किसी भी मॉडल का उसके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग. ठीक है, तो जिनका ज्यादा होगा ऑब्वियसली उन्हीं का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होने वाला है. यहाँ पर जो मॉडल गलतियां कर रहे थे उनका वेट कम होगा, तो उनका कंट्रीब्यूशन भी कम होगा मेरे फाइनल आंसर के अंदर. ठीक है, ये काम करेंगे. रन फॉरेस्ट में ऐसा नहीं था. रन फॉरेस्ट आर्ग मैक्स लेता था. आर्ग मैक्स यानी कि जो भी मेरे पास डिसीजन ट्री आउटपुट देते थे, ठीक है, उनको मैं एक लिस्ट के अंदर आई विल बी सेविंग देम इन अ फॉर्म ऑफ अ लिस्ट ऐसा बना लेता. एक अरे फॉर्मेट था वो. ठीक है, ऐसा कर लेता था. आपको पता भी है, पहले मॉडल ने जीरो दिया, दूसरे मॉडल ने वन दिया, इसने वन दिया, इसने वन दिया, इसने जीरो दिया, हाईएस्ट वन आया है, 3 टाइम्स आया है. ठीक है, तो माई आंसर इज वन. वोटिंग, मेजोरिटी वोटिंग. यहाँ ऐसा नहीं, यहाँ वेटेड एवरेज लेते हैं. ठीक है, और प्रायोरिटी के हिसाब से बात होती है. तो कंबाइन द वीक लर्नर्स, वेट वेट ले लो, वेटेड टोटल, एवरेज नहीं, वेटेड टोटल बोलो उसको. दैट्स व्हाट यू कैन डू एंड यू कैन गिव द रिजल्ट फाइनल. ठीक है, द फिनिश मॉडल इज यूज्ड फॉर द फोरकास्टिंग. आगे के लिए वो यूज कर सकते हैं, उसको प्रिडिक्शन के लिए यूज कर सकते हैं. ठीक है, ये चीज कही गई है. तो भाई जैसे हम बात करें, व्हाट्स नेक्स्ट, वी आर हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ बूस्टिंग अल्गोरिदम्स. ओके, यहाँ पर कहा गया है, मैं पहले बेसिक्स बता देता हूँ. वी आर हैविंग डिफरेंट बूस्टिंग अल्गोरिदम. Three main types are there. The first one is adaptive boosting, ADA boost जिसे कहते हैं अपन. ADA boost, adaptive boosting algorithm. So ADA boost जो होती है was one of the earliest boosting model, सबसे पहली थी, and it adapts and tries to self correct in every iteration of boosting process. ये खुद से सुधार करने की कोशिश कर रही है. खुद से कैसे करेगी? हाउ इट विल डू? तो अभी तक जो प्रोसेस पढ़ी है ना आपने, ये पूरी की पूरी प्रोसेस एडप्टिव बूस्टिंग की पढ़ी है. ठीक है, दैट्स व्हाट यू आर डूइंग. ओके, तो मिस क्लासिफिकेशन पर वेट बढ़ना इज द एडजस्टमेंट ओनली ना. वेट में एडजस्टमेंट करा उसने, बढ़ाया, तो एडप्टिव हुआ ये. तो वट एवर यू आर लर्निंग, अभी तक जो पढ़ा वो एडा बूस्ट था. ओके, और आगे इन्होंने कहा भी एल्गोरिदम में, एडा बूस्ट इनिशियली गिव्स द सेम वेट ऑफ ईच डेटा फॉर द ईच पॉइंट. ठीक है, अभी ऊपर भी ये पढ़ा था. इट ऑटोमेटिकली एडजस्ट द वेट्स ऑफ द डेटा पॉइंट्स आफ्टर ईच डिसीजन ट्री. ये भी ऊपर पढ़ा था. वेट असाइन कर देगा वो, ऑटोमेटिकली चेंजेस कर देगा, अपडेट कर देगा. मोर वेट गलत गलत जिसमें क्लासिफिकेशन उसको ज्यादा दे देगा और करेक्ट वाले का कम कर देगा. यही तो पढ़ा ऊपर. और ये प्रोसेस रिपीट होती रहेगी अंटिल जो रेसिडुअल एरर है वो आपका कम ना हो जाए या किसी एक थ्रेशोल्ड वैल्यू तक ना पहुंच जाए. ये चलता रहेगा. ठीक है, तो आपने एडा बूस्ट ही पढ़ा ऊपर. ओके, कई प्रिडिक्टर्स होते हैं. जैसे अपने पास वो रैंडम फॉरेस्ट में नंबर ऑफ एस्टिमेटर्स होते हैं ना, बाय डिफॉल्ट 100 होते हैं. नंबर ऑफ एस्टिमेटर, नंबर ऑफ डिसेंट्री. उसी तरीके से आप मान के चले बूस्टिंग एल्गोरिथम के अंदर भी कुछ ऐसा ही है. वी आर हैविंग 100 डिसीजन ट्री विच आर कनेक्टेड इन अ सीरियल वे, एक के बाद एक कनेक्टेड. Okay, and it is typically as sensitive as other boosting algorithms. The approach does not work well when there is a correlation among the features. तो ये तो हम चाहते ही है कि भाई कोरिलेशन ना हो फीचर के बीच में. ईच एंड एवरी फीचर मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. मैं ये तो चाहता हूँ कि नहीं होना चाहिए, है ना, कोरिलेशन नहीं होना चाहिए. ये तो मैं चाहता हूँ, तो ये तो ओवर फिटिंग हो जाएगा. तो एडा बूस्ट उसके लिए सूटेबल नहीं है, यहाँ कोरिलेशन हो. बाकी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम क्लासिफिकेशन करने के लिए तो सूटेबल एल्गोरिथम, इसको यूज कर सकते हैं और करते हैं. ठीक है, फिर अगली आपकी आती है ग्रेडियंट बूस्टिंग एल्गोरिथम. ये डिफरेंट अप्रोच फॉलो कर रही है. ये क्या कर रही है अपन देखते हैं. ग्रेडियंट बूस्टिंग जो है, इन्होंने कहा यहां पर भी सिक्वेंशियल ट्रेनिंग ही होती है, क्योंकि बूस्टिंग में सब में सिक्वेंशियल ही होगी. बूस्टिंग में सब में सिक्वेंशियल होगी. ठीक है, लेकिन ये क्या फंडा डिफरेंट जो है वो अप्लाई कर रहा है. द डिफरेंस बिटवीन एडा बूस्ट एंड द ग्रेडियंट बूस्टिंग इज डज नॉट गिव इनकरेक्टली क्लासिफाइड आइटम्स मोर वेट. ये वेट चेंज नहीं कर रहा, मतलब जो गलतियां हुई उसका वेट नहीं बढ़ा रहे.
It is not increasing the weight of the misclassified points. Instead, gradient boosting optimizes the loss function by generating base learners sequentially so that the present base learner is always more effective than the previous one. ऑप्टिमाइजेशन कर रहा है ये, ऑप्टिमाइजेशन। अब भाई ऑप्टिमाइजेशन वाला खेल तो हमने डीप लर्निंग में पढ़ना है। ऑप्टिमाइजेशन ये क्या होता है, अब सुनिए जरा। ऑप्टिमाइजर आपने नाम भी सुना है, एंड आप ऑप्टिमाइजर जानते भी हो, जैसे एडम, ठीक है, ये दिस ग्रेडियंट डिसेंट, सकोस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट, आरएमएस प्रॉप, ओके, देन एडा ग्रेड, एडा डेल्टा, ठीक है, एडम डब्ल्यू, ये ऑप्टिमाइजर्स हैं, ठीक है, जिसमें मुझे क्या करना पड़ता है, लॉस का डिफ्रेंसिएशन करना पड़ता है विद रिस्पेक्ट टू वेट, डेल एल बाय डेल डब्ल्यू ये करना पड़ता है मुझे। दिस इज व्हाट आई नीड टू कैलकुलेट द ग्रेडियंट। तो लॉस क्या होता है, व्हाट इज द लॉस, प्रिडिक्टेड माइनस एक्चुअल इज अ लॉस, ये होता है। आई एम गोइंग टू कैलकुलेट द डिफरेंशिएशन ऑफ लॉस विद रिस्पेक्ट टू वेट, ये मुझे करना पड़ेगा। तो जो ग्रेडियंट बूस्टिंग एल्गोरिदम है वो कह रहा है कि भाई वेट वेट बढ़ाने वाला काम मत करो, ठीक है, कि यदि जहां पर मिस क्लासिफिकेशन हुए तो आप वेट बढ़ा रहे थे, ऐसा मत करो। वो कह रहा है कि ग्रेडियंट निकालो आप। और अच्छा, हमने ये चीज ऐसा कोई नई नहीं है, ठीक है, अभी बता दिया मैंने कि आप डीप लर्निंग में ऑप्टिमाइजर्स का नाम आपने सुना है, वहां पर आप पढ़ोगे डिटेल में, हर एक ऑप्टिमाइजर को आप पढ़ोगे डिटेल के अंदर, ओके। और this thing of partial differentiation we have seen in previous algorithms also of machine learning, हमने लगाया है ये पार्शियल डिफरेंशिएशन वाला कॉन्सेप्ट प्रीवियस एल्गोरिदम्स के अंदर, ओके, यूज करा है हमने ये कॉन्सेप्ट, ठीक है, पार्शियल डिफरेंशिएशन वाला, जहां पर हम लॉसेस ले रहे थे, हमने लीनियर रिग्रेशन में भी लॉस लिया, ठीक है, वहां भी कंसिडर करा था, तो ऐसा ही करके कुछ हम डिफरेंशिएशन कर रहे थे, यहाँ भी वो यही कह रहा है कि ग्रेडियंट, तभी नाम है उसका ना ग्रेडियंट बूस्टिंग, एडाप्टिव नहीं। एडाप्टिव बूस्टिंग में वेट अपडेट होता है, ग्रेडियंट बूस्टिंग में ग्रेडियंट निकाला जाता है, और ग्रेडियंट यदि निकाल रहे हो विद रिस्पेक्ट टू जो वेट है ना, ठीक है, लॉस का, तो यही ग्रेडियंट डिसेंट होता है, इसी को ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। और ऑप्टिमाइजेशन मीन्स इज टू रिड्यूस द एरर्स। आपसे यदि कोई पूछे व्हाट डू मीन बाय ऑप्टिमाइजेशन, यू विल से रिड्यूस एरर, एरर को कम करिए, ठीक है। और कैसे, कैसे आप एरर को कम करोगे, यू आर गोइंग टू रीच द मिनिमा, दैट्स व्हाट यू वांट टू परफॉर्म, ठीक है, आप अभी इस पॉइंट पर हैं कहीं, यू आर एट दिस पॉइंट, यू हैव टू गो डाउन एंड यू हैव टू रीच द मिनिमा, जहां पर मेरा प्रिडिक्टेड और एक्चुअल के बीच में एरर लगभग जीरो के बराबर हो जाए, इक्वल टू जीरो तो नहीं कहूंगा मैं, बट लगभग द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड द प्रेडिक्टेड विल बी नियरली लाइकली टू बी जीरो, ऐसा हो जाए, ठीक है। तो ये होता है ग्रेडियंट डिसेंट, ग्रेडियंट डिसेंट इट्स एन ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक, यानी मुझे लोकल मिनिमा निकालना पड़ता है, लोकल मिनिमा, ठीक है, ये करना पड़ता है। दिस थिंग वी आर गोइंग टू स्टडी इन डिटेल, क्योंकि हमें एक एक ऑप्टिमाइजर को पढ़ना है डीप लर्निंग के अंदर, वहां पे सिखाऊंगा। वी आर गोइंग टू स्टडी ऑल दिस थिंग्स इन डिटेल इन डीप लर्निंग, हर एक ऑप्टिमाइजर पिकअप करूंगा जिनके नाम लिखे थे मैंने अभी, ओके। ओके, तो भाई क्या हुआ यहाँ, जो है इसी अप्रोच को वो फॉलो कर रहा है, ओके। कहा कि ऑप्टिमाइजेशन करो आप, ऑप्टिमाइज द लॉस, ये करो आप, ठीक है। एंड दिस मेथड अटेम्प्ट्स टू जनरेट एक्यूरेट रिजल्ट्स इनिशियली इंस्टेड ऑफ करेक्टिंग द एरर्स थ्रू आउट द प्रोसेस, यानी वो ग्रेडियंट निकालेगा और जो भी लॉसेस होंगे, ठीक, उसी का ही विद रिस्पेक्ट टू वेट जो है ऑप्टिमाइजेशन हो रहा है, एंड ये वाली इंफॉर्मेशन वो कैरी फॉरवर्ड कर देगा आगे जाके, जैसे ऊपर हो रहा था वहां वेट को अपडेट हो रहा था, यहाँ ग्रेडियंट निकाले जा रहे हैं, यही ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस है। क्या कह रहा है, ग्रेडियंट बूस्टिंग ऑप्टिमाइजेस द लॉस फंक्शन बाय जनरेटिंग द बेस लर्नर सिक्वेंशियली सो दैट द प्रेजेंट बेस लर्नर इज ऑलवेज मोर इफेक्टिव देन द प्रीवियस वन, ठीक है। तो आप ग्रेडियंट निकाले, आप ऑप्टिमाइज करें, ठीक है, और फिर उसको आप जो है वो आगे दे दीजिए,
ये काम कर रहा है ग्रेडियंट बूस्टिंग अप्रोच। ठीक है, अगला है मेरा एक्सट्रीम ग्रेडियंट बूस्टिंग, एक्सजी बूस्ट के नाम से जाना है। तो ये बूस्टिंग तो बूस्ट एल्गोरिदम, दिस इज एक्सट्रीम ग्रेडियंट बूस्टिंग, एक्सजी बूस्ट, जिसको मैं कई जगह यूज करता हूँ फॉर क्लासिफिकेशन ऑल्सो एंड रिग्रेशन ऑल्सो। तो एक्सट्रीम ग्रेडियंट बूस्टिंग में क्या होता है, ये कंप्यूटेशनल स्पीड बढ़ा देगा। दैट मीन्स इट यूजेस मल्टीपल कोर्स ऑफ द सीपीयू। तो एक हमने हाइपर पैरामीटर देखा था रैंडम फॉरेस्ट में, जिसका नाम था एन जॉब्स, और उसको यदि मैंने -1 ले लिया तो वो क्या करेगा, आपके पास जितने भी कोर अवेलेबल हैं प्रोसेसर में उन सबको यूज कर लेगा वो, और पैरेलल प्रोसेसिंग करवाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है, एक्जीबूस्ट यूजेस मल्टीपल कोर्स ऑन द सीपीयू सो दैट लर्निंग कैन ऑकर इन पैरेलल ड्यूरिंग द ट्रेनिंग। It is a boosting algorithm that can handle extensive datasets, making it more attractive. So यहाँ XGBoost is the same as the boosting, but it perform parallel processing. ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, पैरेलल प्रोसेसिंग, कैश ऑप्टिमाइजेशन एंड आउट ऑफ द कोर प्रोसेसिंग, ये सारी की सारी जो चीज है वो यहाँ पर मुझे क्या होगा देखने को मिलेगी एक्सट्रीम ग्रेडियंट बूस्टिंग के अंदर। ठीक है, तो द बेसिक कॉन्सेप्ट विच यू हैव स्टडीड कि वेट असाइन होते हैं, और वो एडा के लिए था, अडप्टिव बूस्टिंग के लिए था। बाकी जो रेस्ट ऑफ द बूस्टिंग है वो आपसे क्या करती है, ग्रेडेंट निकालने की बात करती है। ठीक है, तो हम ये कहेंगे, अच्छा ये आउट ऑफ कोर क्या होता, व्हाट डू मीन बाय आउट ऑफ कोर प्रोसेसिंग, व्हाट डज इट मीन आउट ऑफ कोर प्रोसेसिंग? ये आपने नाम सुना है कभी, कि मशीन लर्निंग एल्गोरिदम जो है, इट वर्क्स विद द डेटा that cannot fit into a single machine memory but can fit into some data storage। तो लोकल हार्ड डिस्क हो सकती है या कुछ और रिपोजिटरी हो सकती है, तो अपन वहां पर उसकी प्रोसेसिंग करवा लेंगे, उसमें कोई इशू नहीं। यदि कोई डेटा आपकी मशीन पर सॉल्व नहीं हो पा रहा तो आई विल कंसिडर एनी अदर रिसोर्स, वहां पर मैं डेटा रख के उसकी प्रोसेसिंग करवा लूंगा। तो आउट ऑफ कोर प्रोसेसिंग यानी जो आप नहीं कर सकते, वो आपकी क्षमता के बाहर है, दैट इज आउट ऑफ योर कैपेबिलिटी, तो किसी और से आप करवा लो काम, ये वाला। तो ये एक्जीबूस्ट में आउट ऑफ कोर प्रोसेसिंग भी हो जाएगा। तो कैश ऑप्टिमाइजेशन, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, पैरेलल प्रोसेसिंग सब हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, फाइन। तो यहाँ ऑप्टिमाइजेशन हो रहा है, दैट मीन्स यू आर टेकिंग द ग्रेडियंट ऑफ द एरर्स, लॉस का आप ग्रेडियंट निकाल रहे हो और कोशिश कर रहे हो कि वो कम हो। ठीक है, बूस्टिंग कई बेनिफिट्स देते हैं। देखिए क्या बेनिफिट्स दे रहे हैं ये, बूस्टिंग इज इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू इंटरप्रेट। अभी जो आप कह रहे हो इजी इजी, वो तो जो समझ पाए अभी तक आपकी प्रक्रिया में, ठीक है समझ में तो आ गया। आपके लेवल पे इजी क्या है वो आपकी प्रोसेसिंग बताती, रिजल्ट्स बताएंगे। ठीक है, अब वो कह रहा है कि इट इज गुड इन हैंडलिंग द मिसिंग डेटा, लेकिन मैं कभी भी किसी भी मॉडल को मिसिंग डेटा आई एम नॉट सबमिट, मैं उसको पूरा फील्ड मॉडल को डेटा फील्ड ही दूंगा, कभी नहीं देता मैं मिसिंग वाला। ठीक है, मोस्ट लैंग्वेजेस हैव बिल्ट इन लाइब्रेरीज टू इम्प्लीमेंट द बूस्टिंग एल्गोरिथम्स विद पैरामीटर्स लाइक फाइन ट्यूनिंग परफॉर्मेंस। तो भाई बूस्टिंग है, आप इसको बूस्ट को इंस्टॉल कर लीजिए और इसको फिर यूज करिएगा, आप देखिएगा इसमें क्या क्या हाइपर पैरामीटर हैं और क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं। खैर मैं बताऊंगा अभी इसका इम्प्लीमेंटेशन, यूज भी करेंगे, देखेंगे जैसे प्रीवियस का करा। बायस रिडक्शन, दैट मीन्स अनसर्टेनिटी और इनएक्यूरेसी, एरर वाली बात कर रहा है ये। बायस का मतलब ये होता है मशीन लर्निंग में बायस आता है। तो बूस्टिंग कंबाइन मल्टीपल वीक लर्नर्स इन अ सीक्वेंशियल वे विच इटरेटिवली इंप्रूव द ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ये बोल रहे हैं, एंड दे विल रिड्यूस द बायस दैट इज कॉमन इन मशीन लर्निंग मॉडल। तो भाई जो मशीन लर्निंग मॉडल गलतियां करती है भाई, आप सबको मिलाकर ये एक्सपेक्टेशंस हैं भाई, ये एक्सपेक्टेशन है हमारी कि आपका अरेंजमेंट हमने इस तरीके से करा है, सिक्वेंशियल जमा रहे हैं आपको, तो हमारा मानना है कि जो गलती प्रीवियस वाले मॉडल ने करी थी वो आगे वाला मॉडल नहीं दोहराएगा, ये मेरी एक्सपेक्टेशन है। तो वॉट एवर हैज बिन रिटन हियर, दैट आर डिजायर्ड पॉइंट्स, कि हाँ ऐसा होता ही होगा, बायस करेक्शन नहीं हो जाएगा वो। ठीक है, कंप्यूटेशनल एफिशिएंसी में भी मेरे को कोई इतना ऐसा नहीं है। ठीक है, मेरे रिजल्ट्स की एक्यूरेसी अच्छी आएगी, दे कैन हेल्प टू रिड्यूस द डेटा एट्रीब्यूट्स एंड लार्ज डेटा भी वो हैंडल कर लेगा। ठीक है, यदि आप बूस्टिंग ले रहे हो तो वो सारे कोर का इस्तेमाल करेगा और पैरेलल प्रोसेसिंग करेगा और जल्दी का रिजल्ट दे देगा।
ऐसा मान रहे हैं कि हमको रिजल्ट भी जल्दी मिलेगा और एक्यूरेट मिलेगा। ठीक है, ये हम मान के चल रहे हैं। ठीक। अब कुछ गलतियां भी हैं। क्या है? आउटलायर। ठीक है, बाकी सब जो भी बातें हैं डेटा पर, आउटलायर का तो ध्यान रखना है आपको। डिसीजन ट्री में भी आउटलायर का ध्यान रखना था। अब जब डिसीजन ट्री में रखना था तो भाई ये सब खुद ही डिसीजन ट्री से मिलकर बनी, तो यहां पर भी यू हैव टू टेक केयर ऑफ द आउटलायर। क्योंकि डिसीजन ट्री जो सॉल्व होगी तो ऐसा ना हो कि वो अननेसेसरी स्टेप्स के अंदर फंस जाए, अननेसेसरी एक्सप्लोरेशन हो। अच्छा, इसको बचाने के लिए तो हम सैंपल दे रहे हैं, इसी को बचाने के लिए वी आर गिविंग द सैंपल्स ऑफ द डेटा। बट स्टिल वो डेटा स्क्यूड हो सकता है, उसमें आउटलायर हो सकते हैं, तो यदि आउटलायर रिमूव करें और उसके बाद दें तो दैट विल बी अ बेटर आइडिया इन केस ऑफ डिसीजन ट्री ऑल्सो, इन केस ऑफ रैंडम फॉरेस्ट ऑल्सो, इन केस ऑफ बूस्टिंग एल्गोरिथम ऑल्सो। ठीक है, ये चीज ऑलराइट। तो आउटलायर के ऊपर निर्भर कर रहा है ये। Okay, we may also face the challenges to use boosting in real-time implementation because the algorithm is complex than the other process. Boosting methods have high adaptability, so इसको wide variety, we can use a wide variety of model parameters that immediately after the model's performance। अब भाई ये तो कुछ भी अंग्रेजी अंग्रेजी कुछ भी लिख रखा है इसने, वो अपनी जगह है। ठीक है, हमें इससे कोई मैटर नहीं। हम वी आर गोइंग टू यूज दिस अल्गोरिदम बिकॉज इट इज प्रेजेंट एंड वी आर एक्सपेक्टिंग द गुड रिजल्ट्स फ्रॉम इट, तो हम तो यूज करेंगे। ठीक है, और डेटा बड़ा होगा इफ योर डेटा इज बिग। ओके, इफ योर डेटा इज बिग तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि अच्छे रिजल्ट्स आए आपको यहाँ पर। नॉट सब्जेक्ट टू ओवर फिटिंग ऑफ द मॉडल, ये ध्यान रखना है, आउटलायर नहीं होना चाहिए। उसने ज्यादा चीजों का अजम्पशन नहीं बोला आपसे। ठीक है, हमारा 10,000 20,000 का डेटा हुआ, चला लेंगे आराम से, बढ़िया, उस पर आउटलायर ना हो और ओवर फिटिंग नहीं हो, तो हमें रिजल्ट्स अच्छा मिलेगा। हमारा प्रोसेसर अच्छा हो, ठीक है, तो वी कैन गेट द रिजल्ट्स इन क्विक टाइम। लेकिन यदि ये अच्छा एसवीएम फिर भी भारी एल्गोरिदम है, सपोर्ट वेक्टर मशीन, ओके, वो फिर भी टफ है एल्गोरिदम। इन सब के मुकाबले मुझे वही वही टफ लगी, सपोर्ट वेक्टर मशीन। और इंटरव्यू के अंदर भी एसवीएम ही पूछी जाती है ज्यादातर। ओके, आप देख रहे हो हाइपर प्लेन और वो सारा एप्सिलॉन ट्यूब, वो कौन, यहाँ कोई ऐसा कॉन्सेप्ट आया ही नहीं, सिर्फ अप्रोच आई। उन्होंने कोई हाइपर प्लेन, कोई ट्यूब नहीं बनाया क्लासिफिकेशन के लिए। उन्होंने जस्ट बस बोला डिसीजन ट्री, एक चीज पढ़ ली हमने बस, डिसीजन ट्री, तो आपने रैंडम फॉरेस्ट भी आपका हो गया और बूस्टिंग भी आपकी हो गई। ठीक है, अंतर बस इतना है कि रैंडम फॉरेस्ट में पैरेलल कर दोगे, इसमें सिक्वेंशियल कर दोगे, यहाँ इंडिपेंडेंट सॉल्व होगा पूरा। यहाँ पर बूटस्ट्रैप एंड एग्रीगेशन होता है। ओके, बूटस्ट्रैपिंग एंड एग्रीगेशन ये होता है। यहां पर कोई बूटस्ट्रैप और एग्रीगेशन वाली बात नहीं कही उसने। उसने बोला कि बूस्टिंग में सिक्वेंशियल अरेंजमेंट होता है मॉडल्स का, बस इतनी बात बोली उसने, सिक्वेंशियल अरेंज। हाँ, डिफरेंट टाइप्स की होती है, दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। तो डिफरेंट टाइप्स में इफ यू आर टेकिंग एडा बूस्ट, यदि आप एडा बूस्ट लेकर चल रहे हो तो वहां पर वेट एडजस्ट होता है। और यदि ग्रेडियंट बूस्टिंग लेकर चल रहे हो तो वहां पर ग्रेडियंट निकाला जाता है, डेल एल बाय डेल डब्ल्यू। ठीक है, ग्रेडियंट्स आर कैलकुलेटेड, और ग्रेडियंट ही ऑप्टिमाइजेशन। दैट मीन्स ग्रेडियंट क्यों निकाला जा रहा है, हम कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये रिड्यूस हो, एरर्स आर गोइंग टू रिड्यूस, दैट्स व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग, तो ग्रेडियंट निकाला जाता है। ठीक है, और एक्सट्रीम एक्जी बूस्ट के अंदर वो कह रहे हैं कि भाई आप पैरेलल, तो यही है, ग्रेडियंट बूस्टिंग ही है वो एक्सट्रीम। तो एक्सट्रीम में सिर्फ इतना कहा कि आप पैरेलल प्रोसेसिंग करवा लोगे। ठीक है, दैट मीन्स यू आर इंक्रीजिंग द कंप्यूटेशनल पावर, ये करवा लोगे तो एक्सट्रीम ग्रेडियंट बूस्टिंग बन जाएगी, बात खत्म हुई। ठीक, तो ये जो बूस्टिंग एल्गोरिदम है ना, ये अलग से है। ठीक है, यू कैन चेक आउट द बूस्टिंग एल्गोरिदम, एक्सजी बूस्ट वगैरह, ये अलग से है। ठीक है, बाकी चीजें हमें एसके से मिल रही थी और चल रहा था, ये थोड़ा सा अलग वाला मैटर है। देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा आप देखिएगा कि इम्प्लीमेंटेशन में मुझे क्या पिप इंस्टॉल क्या करना रहेगा। ठीक है, एंड क्या बेसिक या प्राइमरी कोड्स क्या है इसके, मैं अपने लेवल पे तो बताऊंगा, लेकिन आज मुझे क्या कॉन्सेप्ट्स को आपको एक्सप्लेन करना था। ठीक है, ये वाली बातें जो थी, तो ग्रेडियंट बूस्टिंग का थोड़ा सा और मैं बताऊंगा कि व्हाट इज द मेन आइडिया बिहाइंड द ग्रेडियंट बूस्टिंग। अल्गोरिथम अभी भी सिक्वेंशियल ही चल रहा है,
मुझे एरर को रिड्यूस करना है जो प्रीवियस मॉडल ने करे थे। ठीक। तो क्वेश्चन ये बना कि कैसे कर सकते हो, हाउ वी कैन डू दैट, हाउ वी कैन रिड्यूस द एरर्स विच आर जनरेटेड बाय द प्रीवियस मॉडल, एंड व्हाट इज द वे टू डू इट। ओके, तो उसके लिए क्या करा इन्होंने, व्हेन द टारगेट कॉलम इज कंटिन्यूस वी यूज ग्रेडियंट बूस्टिंग रिग्रेसर, और क्लासिफिकेशन होता है तो क्लासिफायर लेंगे। द ओनली डिफरेंस बिटवीन दीज टू इज लॉस फंक्शन। जब रिग्रेसर होगा तो एमएससी होगा, और जब क्लासिफिकेशन होगा तो लॉग लॉस या लॉग लाइक्लीहुड, या आप कह सकते हैं एंट्रोपी। ठीक है, क्रॉस एंट्रोपी, बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी, ये कह सकते हो। ठीक है, दिस कैन बी कंसिडर्ड, ये चीजें होंगी। मेरे पास इसको समझाने का पूरा एक एग्जाम्पल है न्यूमेरिकल, जिसको मैं आगे आगे आपके लिए बताऊंगा कि सॉल्व कैसे कर रहा है, व्हाट इट इज कंसिडरिंग। ओके फाइन, तो ये मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक, और आप ये देख सकते हो कहीं बीच में आपको ये देखिए ये, ठीक है, ये आप देखिए ये आपका लॉस फंक्शन है। ओके, दिस इज अ लॉस फंक्शन, एंड यू आर टेकिंग द ग्रेडियंट। ये देखो यहाँ पर ग्रेडियंट दिया गया, डेल एल बाय डेल गामा, ये करा गया। तो ग्रेडियंट बूस्टिंग के अंदर मैं लॉस फंक्शन का ग्रेडियंट लूंगा, दैट्स व्हाट आई नीड टू डू। और उसके अंदर फिर क्या करूंगा, पॉइंट सब्सटीट्यूट करूंगा। ठीक है, आप देखिएगा यहाँ पॉइंट सब्सटीट्यूट किए गए। ठीक है, यहाँ सब्सटीट्यूशन किया गया। थोड़ा सा एफर्ट लगेगी इसको समझने में, क्योंकि हम मैथ्स की बात कर रहे हैं। तो आज तो मैंने आपको थियोरिटिकली बोला सारी चीजें, ठीक, कि ऐसा ऐसा होता है, आपस में कनेक्टेड होते हैं और ऐसे अपडेट्स होता है। बट मैथमेटिकली ये चीजें करना थोड़ा समझना पड़ेगा हमको। तो इसके लिए एक डेटा लेना पड़ेगा, मैंने लिया। ठीक है, आई टू का डेटा, और इसमें बूस्टिंग कैसे लगाऊंगा ये मुझे आपको आगे बताना रहेगा। तो पूरा न्यूमेरिकल है जो हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर, एंड यू अप्लाई द बूस्टिंग टेक्निक ओवर इट, और फिर देखेंगे कि ये ट्री व्री कैसे बनती है। ओके, देन विल सी अहेड हाउ दिस ट्री हैज बीन क्रिएटेड। ऑल राइट, ठीक है, तो ये हम जो है बोलेंगे। ठीक है, ऑल राइट, ये देखो ये सोल्यूशन कर रखा है। ऑल राइट, और ये वैल्यू निकाली गई है। ठीक है, ये वैल्यू निकाली गई है। ठीक, फाइन, तो ये इसका फाइनल रिजल्ट है बूस्टिंग का। विल सी इट कैसे ये काम करता है। जब ये मेरा न्यूमेरिकल होगा तो ही हम किसी डिसीजन पर आ पाएंगे कि बूस्टिंग कैसे काम करता है। अनलेस एंड अनटिल नहीं आ पाएंगे। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं अभी। यू कैन आस्क द डाउट इफ यू आर हैविंग एनीथिंग इन योर माइंड, प्लीज। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट प्लीज आप पूछ सकते हैं। तो बूस्टिंग का कॉन्सेप्ट आपके जो बैगिंग वाले कॉन्सेप्ट से है। बूस्टिंग हम प्रिफर कर रहे हैं भाई तुम बेटर हो। क्यों तुम बेटर हो? क्योंकि बैगिंग में हमने ये ध्यान दिया ही नहीं कि मिस्टेक्स क्या होंगी। ओके, जो भी आपने निकाला इंडिपेंडेंट जो मेरे मॉडल रिजल्ट निकाल रहे थे, हमने बोला भाई तुम ही सही हो, बाद में वोटिंग करवा लेंगे। ये एरर वेरर करेक्शन वाला हमारे बस की बात नहीं है, ये हम नहीं करते। लेकिन बूस्टिंग के अंदर आपने सबको वीक ही माना। यू सेड यू ऑल आर वीक मॉडल्स, यू आर इंडिविजुअल। सो ये आपको रियल लाइफ में भी एक मैसेज देने की कोशिश कर रहा है। इफ यू आर इंडिविजुअल यू आर वीक, बट इफ यू आर यूनाइटेड यू आर स्ट्रांग। ये मैसेज दे रहा हूँ रियल लाइफ में भी आपको, कि आप सब यदि यूनाइटेड रहेंगे, आप अपने प्रीवियस जो जिन्होंने गलती करी फॉर लर्निंग फ्रॉम देम। ओके, सो एट द एंड ऑफ द डे यू आर गेटिंग द गुड प्रिडिक्शंस, गुड रिजल्ट्स यू आर गोइंग टू गेट, ये मिलेगा। हाँ, टेक्निक अलग अलग थी। एक जगह बोल रहा था कि वेट को अपडेट करो, एक जगह बोल रहा है ग्रेडियंट निकालो। तो वेट को अपडेट करना, देखिए मैं एक ही एल्गोरिदम पर फोकस करूंगा, वो है बूस्टिंग वाली। एडेप्टिव अपनी जगह है, आप चाहे तो एक्सप्लोर करिएगा, कोई डाउट रहता आप पूछेगा। आई एम फोकसिंग अपॉन द बूस्टिंग एल्गोरिदम। उसको कैसे सॉल्व करते हैं उसका मैथ्स मेरे पास पूरा है। ठीक है, तो उसका मैथ्स मैं बताऊंगा, वो न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा आपके सामने। ठीक है, कैसे वो काम करता है, एंड फिर उसके इम्प्लीमेंटेशन पर आएंगे। इस तरीके से अपन बूस्टिंग पढ़ेंगे। मीनवाइल आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कह सकते हैं। यस प्लीज से एनी डाउट रिलेटेड टू द बूस्टिंग, इंट्रोडक्शन ऑफ बूस्टिंग एल्गोरिथम्स, मतलब यहाँ ग्रेडियंट बूस्टिंग, एडाप्टिव बूस्टिंग, दोनों हमने अभी जो है उसको इंट्रोड्यूस करा। नो डाउट, ठीक है। आई होप आप समझ गए ये सिक्वेंशियल अरेंजमेंट और ये सारी बातें। फाइन, अब इसको हम कल मैथमेटिकली
डिराइव करेंगे। ठीक है। ओके। सो थैंक यू एवरीवन फॉर joining the class. Let me